Hello student, welcome in your science class. Today I am going to start the fifth chapter of your science book, that is food and digestion. So we all know that food is very important for our life. All the living organisms on the earth cannot survive without food because the food help us to grow and stay healthy, right? Okay, now let's start. We perform different types of activities from morning till night. Children used to study and play games, and after long hour of work we get tired and hungry. Then we need food. After eating food, we feel better. Thus, the food gave us energy. So, what is the meaning of this? We are performing so many works in our daily life, like reading, cycling, walking, laughing, dancing, cooking, everything. So, for every work, we need energy, and this energy we get from foods. Okay, so हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत कुछ काम करते हैं सुबह से लेकर रात तक. ठीक है, तो सब काम के लिए हम लोगों की एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हम लोग को कहाँ से मिलते हैं? फूड से, खाने से. फूड हम लोगों की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इसीलिए फूड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. इसीलिए फूड हम लोग के जीवन में बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखती है. अगर बहुत देर तक हम लोग कुछ काम करते या तो कुछ खेलते, कहीं पे वॉकिंग करते, तो कुछ देर बाद हम लोगों को बहुत टायर्डनेस फील होता है और हम लोग को बहुत भूख लगती है. एंड जब हम लोग कुछ खाना खा लेते हैं उसके बाद तब हम लोग की हेल्थ जो है वो थोड़ा सा ठीक लगने लगते. तो इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? दैट आफ्टर ईटिंग द फूड वी गेट सम एनर्जी फ्रॉम इट. थोड़ा सा खाने के बाद उस खाने से हम लोगों को थोड़ा सा एनर्जी मिली है. ओके, now thus the food gives us energy. Food help us to grow, fight disease and stay healthy. Our body wants various substances to perform different things. The substances are known as nutrients. जो भी हम लोग दिन भर में खाते हैं उस खाने में ऐसा कुछ चीज़ रहते हैं जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो उस जो सब्सटेंसेस खाने के से अंदर से हम लोग को मिलते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स. ओके, सो ऑल ऑफ यू अंडरलाइन दिस थिंग that what is the nutrients, children? The nutrients is the various substances to perform different things. These substances are known as nutrients. So from here, various substances to perform different things, and these substances are known as nutrients. The food makes our body healthy and strong. Okay, now डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग डिफरेंट फूड के बारे में जानेंगे. वी एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स. ऑल फूड आइटम्स कंटेन वेरियस सब्सटेंसेस यूजफुल टू आवर बॉडी. दिस आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. अगेन अंडरलाइन दिस सेंटेंस. This is the definition of nutrients. If the question is come, what is the nutrients? Then all of you to write it. All the food items contains various substances useful to our body. These are known as nutrients. Okay. Now, the different food items contain nutrients like carbohydrates. This is the name of the different nutrients: carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals. दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ अ न्यूट्रिएंट्स. ये सारे न्यूट्रिएंट्स की नाम है जो हम लोगों को डिफरेंट टाइप की खाने से मिलती है. दिस न्यूट्रिएंट्स गिव्स कंप्लीट फूड फॉर आवर बॉडी. ये सारे न्यूट्रिएंट्स जब खाने के थ्रू हम लोगों की बॉडी में आते हैं तो वो हम लोग की बॉडी को
एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कोई भी डिजीज़ से फाइट करने में हम लोगों को वो मतलब वो हम लोग को प्रोटेक्ट करते, कोई भी डिजीज़ से हम लोगों को ग्रोइंग में हेल्प करते, तो सारे कुछ हम लोगों को ये सारे न्यूट्रिएंट्स से मिलती है. नाउ वी आर लर्न फर्स्ट अबाउट द फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, तो अब हम लोग पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एनर्जी गिविंग फूड. Sugar and starch are important carbohydrates. These are obtained from wheat, rice, corn, potato, sugarcane, honey, etc. That means from this type of foods we can get the carbohydrate nutrients, and as the carbohydrate nutrients give us energy, so it is called also energy giving food. कार्बोहाइड्रेट रिच कोई भी खाने से हम लोगों की बॉडी में एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट जो भी खाने में रहते हैं उसको कहते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड. और कौन से खाने से हम लोग को मिलते हैं? यस, द राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, शुगर केन, हनी एट्सेट्रा, और भी बहुत सारा है. ओके, नाउ पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड अ लॉट ऑफ शुगर एंड स्टार्च डेली. अब किसकी हेल्थ के लिए कार्बोहाइड्रेट कितना अमाउंट ज़रूरी है, ये डिपेंड करती है कि कौन सा इंसान कितना हार्डवर्क करती है, कितना उसका कैलोरी खर्चा हो रहा है, मतलब कितना उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग की जो बॉडी के जो चाहत है, जो नीड है, वो डिपेंड करते हैं. ठीक है, अगर जो लोग दिन भर काम करते हैं, जो फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो उसका एनर्जी लेवल जल्दी ख़त्म होता है, इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना देना होगा. ठीक है, सो जो ज़्यादा काम करती है, फिज़िकल वर्क जिसका ज़्यादा होता है, उसका कार्बोहाइड्रेट की न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा ज़रूरत होगा. नाउ द सेकेंड न्यूट्रिएंट इज़ द फैट. सेकेंड इज़ द फैट. Fat also gives us energy and keep our body warm. तो फैट जो है वो क्या है, वो भी हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरह, और फैट और एक काम करती है एक्स्ट्रा, हम लोग की बॉडी को वार्म रखते हैं. ओके, that's why during the winter seasons and those people that live in the coldest region, they have advised for eating the more fats rich फूड्स. जो भी ठंडे रीजन्स पे रहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होती है, और इस विंटर के टाइम पे ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैट रिच खाना हम लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि ये फैट्स हम लोगों को एनर्जी भी देते हैं, एज वेल एज इट कीप अस ऑल्सो वार्म ऑफ आवर बॉडी. ये हम लोग की बॉडी को अंदर से गर्म भी रखते हैं. नाउ फैट्स आर रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट. They give us more energy than others. So कार्बोहाइड्रेट खाने से जितना एनर्जी हम लोग को मिलते हैं, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी हम लोग को फ़ैट खाने से मिलते हैं. मतलब क्या है, फ़ैट अगर थोड़े से अमाउंट पे भी हम लोग खाते हैं तो वो उससे ज़्यादा एनर्जी हम लोग को गेन होगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा परिमाण में अमाउंट पे खाना होगा, फिर हम लोगों को एनर्जी मिलेगा, लेकिन फ़ैट थोड़े खाने से हम लोग को एनर्जी गेन हो जाएगा. They are stored in our body and used when body needed. We obtain fats from foods like butter, ghee, cream, cooking oil, cheese and nuts. Okay, that means the most of the milk products, from the milk products we get fats, because the milk is the source of the fat and other nutrients also, and the cheese, the butter, ghee, from this foods also we get or obtain the fat nutrients. Okay, so all of you underline this sentence. First sentence is the fat also give us energy and keep our body warm. That this is the first line. Next, they give us more energy than the others. This is the second important line from fat. And from which food we obtain fat? This is we obtain fats from foods like butter, ghee, cooking oil, cheese, etc. These all lines are very important from this para. Now next nutrients is the protein. Next nutrients is the proteins. So proteins help our body in growth. It is also known as the body building food. Okay,
सो प्रोटीन जो है वो हम लोग की बॉडी में किस में हेल्प करती है, हम लोग की ग्रोथ में हेल्प करती है और हम लोग की बॉडी का जो डेवलपमेंट होती है उसमें हेल्प करती है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उसका जो बॉडी है वो ग्रोइंग बॉडी होती है, उसका बढ़ने की चांसेस ज़्यादा होती है। दैट्स वाई द प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड फॉर चिल्ड्रंस बॉडी इज़ मोर दैन द अदर पर्सन। दूसरे कोई भी पर्सन से बच्चों को प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि उसके जो बॉडी होती है वो ग्रोइंग बॉडी होगी। ठीक है, सो प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी इन ग्रोथ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अंडरलाइन दिस फर्स्ट टू लाइन्स। And they also help to repair our body. Children need lots of protein. Egg, fish, meat, cheese, chicken, milk, peas, pulses are the rich source of protein. That means from this kind of food we obtain protein nutrients for our body. Okay. Now next, vitamins and minerals. Vitamins and minerals help in proper functioning of the organs. Vitamins protect us from diseases, and minerals help in formation of different body components such as blood, bones, muscles and teeth. So why we need a vitamin? Vitamin we need for protect us from any type of diseases because it increase immunity power in our body. जो विटामिन है वो हम लोग की बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी पावर होती है उसको इंक्रीज़ करते हैं। इसीलिए विटामिन खाने से कोई भी अगर हम लोग को बीमारी होती है तो वो हम लोग बहुत जल्दी से रिकवरी कर पाते हैं। और जो मिनरल्स होती है वो क्या करती है? मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशंस ऑफ द डिफरेंट बॉडी कंपोनेंट्स लाइक सच एज ब्लड, बोन्स, मसल्स एंड टीथ। ये सारे जो बॉडी पार्ट्स है इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके केयर के लिए वी नीड अ मिनरल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, so underline this two sentence. Vitamins and minerals help in proper functioning organs. Vitamin protect us from disease. Underline this sentence. Vitamins protect us from diseases and help in formations of the different body components. This is function of minerals. Okay, minerals help in formation of the different body components like bloods, bones, muscles and teeth. Okay, now from which kind of food we can get these vitamins and minerals? The fresh food, vegetables, milk, fish, meat, eggs and the liver oil give us the vitamins and minerals. These food items rich in vitamins and minerals are known as protective food, as these two nutrients protect us from any type of diseases. That's why it also known as the protective food. जैसे कि ये दो जो न्यूट्रिएंट्स है ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करते, रक्षा करते कोई भी डिजीज़ से लड़ने के लिए, तो इसीलिए इस दोनों न्यूट्रिएंट्स को प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है. ओके, नाउ vitamin D is made in our body with the help of sunlight. Thus, the sunlight is the natural source of vitamin D. Underline this sentence, student. The sunlight is the natural source of vitamin D. Calcium plays an important role in development of bones, whereas the iron needed in formation of blood. So, vitamin D we also need for our good health, and this vitamin D we get from the sunlight, because the sunlight is the natural source of the vitamin D. Okay, and next the calcium. Calcium plays an important role in formations or development of our bones, of our teeth, etc. That's why if we are from the childhood, all the parents and the doctors always advise to the children for milk, drinking milk, because from the milk we can get the calcium is a lots of amount, and calcium are needed for our good strong bones as well as the strong teeth. Okay, and the iron are needed for formations of our blood. Okay, now next is the water.
Next is the water. So our body weight contains approximately 60% of water. Our body uses water in all its cells, organs and tissues. That helps to regulate its temperature and maintain other body function. Because our body loses water through the breathing, sweating and digestion. So why we need water in our बॉडी. वाटर हम लोग की बॉडी के लिए क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि वाटर भी बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका हम लोग के लिए निभाते हैं अपनी बॉडी में. जो बॉडी में हम लोग की वेट है उसका 60% हम लोग की बॉडी के अंदर वाटर रहती है. क्योंकि वाटर जो हम लोग की बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम होती है, जो भी प्रोसेस होती है, कहीं बहुत तरह का प्रोसेस हम लोग की बॉडी के अंदर होती है, कंप्लीट होता है. जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, फिर ब्लड सर्कुलेशन, जो भी होता है उस सब के लिए हम लोग की वाटर की ज़रूरत होती है. वाटर उस सबको हेल्प करती है. और हम लोग की जो बॉडी में टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करती है वाटर. ओके. और बिकॉज आवर बॉडी लूजेज वाटर थ्रू द ब्रीथिंग. जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, हम लोग जब सांस को छोड़ते हैं तो सांस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं और उसके साथ साथ कुछ अमाउंट वाटर भी हम लोग की बॉडी से निकलती है. जब ड्यूरिंग द समर टाइम, जब गर्मी के टाइम होता है, वी आर स्वेट लॉट्स ऑफ अमाउंट, तो हम लोग बहुत स्वेट करते हैं. तो स्वेट की तरह भी हम लोग की बॉडी के अंदर की जो वाटर है वो निकल जाती है. इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाना चाहिए. बिकॉज फ्रूट्स हैज़ ऑल्सो कंटेन द वाटर इनसाइड इट. फ्रूट में भी वाटर रहती है. तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो हम लोग की बॉडी के अंदर जो वाटर की जो नीडेड है, जो चाहत है, वो कई तरह से कंप्लीट होती है, उसको फुलफ़िल होती है. ओके. सो the amount of water you need depends on variety of factors, including the climate you live in, how physical active we are, and whether you are experiencing an illness or have any other health problems. जो वाटर की जो अमाउंट है, जो नीडेड है हम लोग की बॉडी की, वो डिपेंड करती है कुछ ऐसे फैक्टर्स के ऊपर. मतलब क्या होते हैं, अगर क्लाइमेट, जब गर्मी का टाइम होता है, ड्यूरिंग समर टाइम वी नीड अ वेरी थर्स्टी फ्रिक्वेंटली. बार बार हम लोगों को पानी पीने की चाहत होती है, जल खेते আমাদের ইচ্ছা করে বেশিরভাগ টাইমে গরমের সময়. एंड ड्यूरिंग द इलनेस, अगर तुम लोग को फीवर होती है कि कुछ तबीयत ख़राब है, उस टाइम पे भी हम लोगों को बार बार प्यास लगती है, पानी की ज़रूरत होती है. ठीक है. और अगर जब हम लोग बहुत हार्ड वर्क करती है, बहुत दौड़ते खेलते हैं, तो उसके बाद हम लोग को देखिए लगता है कि पानी पीने की मन करती है. क्योंकि उस टाइम पे जितना भी हम लोग एक्टिविटी करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो फिजिकल एक्टिविटी के साथ हम लोग की एनर्जी लॉस होती है, हम लोग की स्वेट होने लग जाए. स्वेट होने से हम लोग की बॉडी की जो वाटर है वो एक्सक्रिएट होती है, बाहर निकल के जाती है. जो अमाउंट वाटर हम लोग रहने चाहिए उससे कम होते जाते हैं. तो इसीलिए उस सब चीज़ के बाद हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. ठीक है. और जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं वो सारे इंसानों को ज़्यादा प्यास लगती है. लेकिन अगर हम लोग ठंडे के इलाके में जाते हैं तो हम लोग को ज़्यादा पानी की पीने की मन नहीं करती है. तो ये सारे डिपेंड करते हैं कि कौन सा क्लाइमेट पे हम रहते हैं, कौन सा काम हम लोग करें, ज़्यादा काम करें कि ऐसे बैठे. तो ये सारे चीज़ के ऊपर जो वाटर की नीडेड है वो डिपेंड करती है. नाउ द next topic is the balanced diet. This is very important thing. तो what is the balanced diet? Balanced diet किसको कहते हैं? बैलेंस का मतलब होता है समता, मतलब इक्वालिटी. तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट गिव्स आवर बॉडी द न्यूट्रिएंट्स इट्स नीड इन प्रॉपर फंक्शन. जो बैलेंस डाइट होती है वो क्या करती है, वो उसमें उस डाइट का मतलब होता है खाने जो खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट पे प्रेजेंट रहते हैं. मतलब ऐसा खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स भी रहेगा, प्रोटीन्स भी रहेगा, फैट्स भी रहेगा, विटामिन्स, मिनरल्स, एवरीथिंग्स आर प्रेजेंट इन द राइट अमाउंट. वो सारे खाने राइट अमाउंट का मतलब होता है जितना हम लोग की बॉडी की ज़रूरत होती है उतना सही अमाउंट पे जो खाने में रहती है उसको कहते हैं बैलेंस डाइट. और बैलेंस डाइट हम सबको खाना चाहिए. वी ऑल शुड ईट द बैलेंस डाइट इन एवरी डे. ठीक है. क्योंकि हम लोग की बॉडी को सब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और जिस खाने से हम सब
खाने खाने से हम लोग को सब न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ऐसा खाना हम लोग को डेली डाइट पे रखना चाहिए. We must get the proper nutrition from our diet. We should consume sufficient amount of fresh fruits, fresh vegetables, whole grains. A balanced diet will provide us with the right amount of energy. There are 6 main components of a balanced diet. तो balanced diet पे कौन सा मेन चीज़ रहना चाहिए खाने में? सी the main nutrients: carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals and water. It is important that all 6 are consumed regularly. ये हम लोग को खाने के टाइम पे हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम लोग खा रहे हैं उस खाने के थ्रू हम लोग की बॉडी में ये सारा न्यूट्रिएंट्स अंदर जा रहे हैं कि नहीं जा रहा. ठीक है, सो ये हम लोग को ध्यान रखने हम लोग को खाना चाहिए. अगर तुम फ्रूट्स खाते हो तो वेजिटेबल्स खाते हो तो उनमें से तुम लोगों को कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, फ्रूट खाने में प्रोटीन भी मिल जाएगा. और अगर तुम लोग मिल्क पीते हो तो मिल्क के थ्रू तो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलती है. ऐसे वाटर भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए. हर दिन हम लोग को 6 to 8 ग्लास शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास डेली इन आवर लाइफ. हर रोज़ हम लोग को 6 to 8 ग्लासेस वाटर पीना चाहिए. तो ये सारी चीज़ हम लोग को ध्यान पे रख के खाने की जो डाइट है वो बनाना होगा. नेक्स्ट इज़ द डाइजेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डाइजेशन. द डाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज we eat food, but if this food is not digestion in the properly, so that's time we are not get any nutrients from the food. अगर जो भी हम लोग खा रहे हैं अगर उस खाना अगर हम लोग की बॉडी के अंदर जाके ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो खाने से हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा. ना कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलेगा, ना प्रोटीन से हम लोगों को बॉडी की ग्रोथ होगी. तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हम लोग को मिलेगा जब तक खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा. तो जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है हम लोग की बॉडी में. सो आवर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब द फूड वी ईट डायरेक्टली. जो हम लोग खाते हैं वो सारे खाने को हम लोग की बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. जैसे सपोज यू आर ईट द बिस्किट, सो जो जब हम लोग खा रहे तो होल पार्ट उसका खा रहे, ठीक है, लेकिन जब वो अंदर जा रहे तब क्या वो सेम पार्ट में रहते, सेम फॉर्म में रहते हैं? नहीं. When we are eat the food as the like जो भी फॉर्म में हम लोग खा रहे हैं, आफ्टर ईटिंग दिस इट कन्वर्ट इनटू द सिंपलर फॉर्म आफ्टर बाइटिंग एंड आफ्टर च्यूइंग इट. जब भी हम लोग कुछ भी खाते हैं तो उसको बाइट करके जब वो अंदर में जाते हैं हम लोग की जब एंड देन द स्टार्टेड द डाइजेशन प्रोसेस. फिर डाइजेशन प्रोसेस जो स्टार्ट होते हैं उसके बाद वो खाना वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है. ये जो प्रोसेस है मतलब जो भी हम लोग खाते हैं उससे जो सिंपल फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है खाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन. ठीक है, सो डाइजेशन का मतलब क्या होता है? द फूड वी ईट सच एज फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फिशेस आर ब्रेक डाउन इन स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म. The breaking down of food into simplest form inside our body organs are called digestion. So this is the definition of digestion. Digestion की definition क्या है? जो भी हम लोग खाना खाते हैं उस खाने को ब्रेक डाउन करके मतलब उसको तोड़ के उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये जो प्रोसेस है फिर उसको बॉडी हम लोग की बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है. इस जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइजेशन. सो ऑल ऑफ यू अंडरलाइन दिस. द breakdown of food into simplest form inside our body organs are called digestion. Okay, now it is absorbed by our blood. It is then carried to the different parts of the body. That means when we eat food, it goes into our mouth and then this digestion process is starting, and after complete by the few steps the digestion system is complete, then it absorbed by the blood and it carries to the different parts of our body, and that time we get energy and we get all nutrients in our body. Okay, तो डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट होने के बाद जो है वो ब्लड के थ्रू फिर हम लोग की पूरा बॉडी में जाती है और फिर
हम लोग जो भी चाहिए हम लोग की बॉडी के लिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हम लोग की बॉडी को मिलती है. नाउ वी आर लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन. अब हम लोग क्या जानेंगे कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होती है इनसाइड आवर माउथ. हम लोग की माउथ के अंदर जाके वो कैसे कंप्लीट होती है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग topic. Okay, so all of you listen to me very very carefully. See the picture. First all of you see the picture. See, this picture is the digesting parts of our body. This all body parts are help in the digestion process. First is the mouth, then food pipe, then stomach, it is the stomach, then liver, then large intestine and the small intestine. Okay, this all parts are help in the digestion process. Now let's see how the process is happen. Digestion is the process by which food is broken down into a simple absorbable substances. मतलब डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग की जो खाना खाते हैं उसको ब्रोक डाउन करके उसको तोड़ के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो बॉडी हम लोग की बॉडी उसको एब्जॉर्ब करते हैं. नाउ डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ alimentary canal and associated glands, the parts of alimentary canal. तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन सा पार्ट्स को लेके होते हैं, एलिमेंट्री कैनल एंड उसके साथ और डिफरेंट टाइप का ग्लैंड, उसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनल. देन उनमें क्या क्या आती है, द माउथ, अंडरलाइन दिस पार्ट्स, द माउथ, then esophagus, then stomach, small intestine and the large intestine form the alimentary canal. ये सारा parts मिलके होते हैं alimentary canal. Okay, now mouth is guarded by upper lip and the lower lip. We all know this thing. Our mouth is guarded by the two lips. One is upper lip, another one is the lower lip, right? Now the process of taking in food through the mouth is called ingestion. From here the digestion process is starting. यहाँ से digestion का process starting होती है. तो पहले क्या होता है, the process जिस प्रोसेस में हम लोग खाने को अपने मुंह में डालते हैं. So all of you underline this. The process of taking in food through the mouth is called ingestion. Ingestion मतलब अंदर लेना, इंजेक्ट करे मतलब खाने को हम लोग मुंह अपने माउथ के थ्रू अपने बॉडी के अंदर में डाल रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं. नाउ buccal cavity is the inner region of the mouth. So when we are close our mouth, so inside part of our mouth, जो क्लोज को जब हम लोग जो अपने मुंह को बंद कर लेते हैं, लिप्स को बंद कर लेते, क्लोज कर लेते, फिर मुंह के अंदर वाला जो पार्ट होती है उसको कहते हैं बकल कैविटी. ओके, सो इफ एनक्लोजेस द टीथ एंड टंग. टीथ are of different types, namely incisors, canines, premolars and molars. जो हम लोग की मुंह के अंदर जो टीथ्स होती है 32 टीथ्स होती है वो उसका भी अब डिफरेंशिएट है. डिफरेंट टाइप का टीथ होता है, डिफरेंट टाइप का टीथ डिफरेंट काम करती है खाने को ब्रेकिंग डाउन करने में. तो कौन सा टीथ होता है, सी हियर, incisors, then canines, then premolars and molars. In the next chapter of your science book you are known elaborately about the different types of teeth. इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है तुम लोग का केयर ऑफ टीथ, उसमें तुम लोग और भी अच्छे से टीथ के बारे में जानेंगे. लेकिन अब सिर्फ तुम लोग यही जानो कि हम लोग की मुंह में 4 टाइप्स की टीथ होती है, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड द मॉलर्स. ओके, अब चारों टीथ का काम अलग अलग होती है. फर्स्ट इंसिजर्स आर यूज्ड फॉर बाइटिंग टीथ. जो इंसिजर्स टीथ होती है उसका काम होती है कोई भी खाने को बाइट करना, पहले बाइट करना. देन कैनाइन्स आर यूज टू टीयर टीथ, फिर उस खाने को तोड़ने में हेल्प करते कौन, नेक्स्ट टीथ दैट इज कैनाइन्स. देन
प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर यूज्ड टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड। और प्रीमोलर्स और मोलर्स का काम होता है जब हम लोग दांत से खाने को तोड़ते हैं, उसको छोटे छोटे पीसेस में करते हैं, फिर उसके बाद प्रीमोलर्स और मोलर्स जो टीथ होती है वो उसको अच्छे से च्यूइंग करते हैं, उसको डस्ट में कन्वर्ट करती है, मतलब पूरा डस्ट कर देते हैं ग्राइंडिंग करके। ओके, नाउ टंग। अब टीथ का जो काम है वो ख़त्म हो गया डाइजेशन सिस्टम में, अब काम स्टार्ट होगा किसका? टंग का। टंग हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद द सलाइवा एंड swallowing इट। तो पहले हम लोग की क्या कर रहे हैं डाइजेशन प्रोसेस में, पहले हम लोग खाना खा रहे हैं थ्रू आवर माउथ, देन इनसाइड आवर माउथ द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, देन डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर वर्किंग इन डिफरेंट वेज फॉर बाइटिंग, फॉर chewing and for grinding this food, and then the tongue help them to make a soft paste। फिर टंग क्या करते हैं? उस खाने को सॉफ्ट करते हैं। कैसे करते हैं? विद द सलाइवा एंड swallowing। सलाइवा मतलब लाला, जो हम लोग की मुंह के अंदर देखोगे हमेशा हम लोग की मुंह भीगा भीगा रहते हैं अंदर से, because inside our mouth in the buccal cavity there are so many salivary glands are present, and from the salivary glands the saliva juices is always excrete। सलाइवरी जो ग्लैंड है हम लोग की, वहाँ से हमेशा एक लिक्विड निकलते हैं, उसको बोलते हैं सलाइवा। वो सलाइवा खाने के साथ मिलके उसको सॉफ्ट बना देते, एक पेस्ट बना देते हैं। ओके, नाउ Esophagus or food pipe helps in supplying the food from the buccal cavity to the stomach। अब पहले देखो मुंह का जो काम है वो ख़त्म हो गया, अब काम स्टार्ट होगा किसका? नेक्स्ट पार्ट, मतलब फूड पाइप का। तो जो खाना हम लोग की मुंह में सॉफ्ट हो गई है, ग्राइंडिंग होके डस्ट होके सलाइवा के साथ मिक्सड होके वो सॉफ्ट हो गई है, फिर वो खाना क्या होता है? अपने फूड पाइप के थ्रू, ऑसोफेगस मीन्स फूड पाइप, through the food pipe it is supplying from the buccal cavity to the stomach में आके वो पहुँचता है। then our stomach is like a bag made of muscles। stomach का जो स्ट्रक्चर है वो एक बैग की तरह होती है, मसल्स बैग, ठीक है। उसमें खाना बहुत कुछ घंटों तक वहाँ पे स्टोर रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस खाने के साथ वो मिलती है, जो पेस्ट पहले से स्टोमक पे आया है उसके अंदर वापस फिर से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस उसको मिलते हैं, फिर उसको और भी पेस्ट बनाते हैं, और भी स्मूथ बनाते हैं उसको। नाउ हियर द फूड इज चर्न्ड, मतलब कुछ घंटों तक वहाँ पे रहते हैं, चर्न्ड रहते हैं। इट ऑल्सो मिक्सेस विद सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस produced by the wall of stomach। now from the wall of the stomach some juices are excrete, कुछ juices निकलते हैं, फिर वो फिर से खाने को और भी soft करते हैं। these juices break down the protein in the food। now digestive juice comprised of hydrochloric acid, mucus and some enzymes। तो डाइजेस्टिव जो जूस वहाँ पे खाने के साथ मिक्सड होती है उसमें क्या क्या रहती है? उसमें देखो क्या क्या रहती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहती है, देन म्यूकस रहती है एंड सम एंजाइम्स। एंजाइम्स हम लोग को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं कोई भी खाने को, तो वो सारा चीज़ फिर से उस पेस्ट में वो मिक्सड होती है। नेक्स्ट, फ्रॉम देयर फूड इज पुश्ड इनटू द लॉन्ग कॉइल ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर वो स्टोमक से वो खाना कहाँ पे पुस्ट किया जाता है? स्टोमक। जब स्टोमक का काम ख़त्म हो जाता है, स्टोमक और भी खाने को सॉफ्ट बना देते, देन आफ्टर दैट स्टोमक पुस्ट दिस फूड आइटम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है वो कॉइल है, मतलब तारों की तरह, ट्यूब की तरह होती है, ठीक है, उसमें वो भेज देती है, क्योंकि स्टोमक का जो काम है वो ख़त्म हो गया। अब किसका काम स्टार्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड ऑफ द 3 रीजियंस। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब तीनों चीज़ रहते हैं। वन इज द डियोडिनम, देन जेजुनम एंड द इलियम। ये तीनों जो चीज़ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करती है। पर्शियली डाइजेस्टेड फूड, पर्शियली मतलब थोड़ा सा,
जो पहले स्टोमक पे हुआ था और उसके पहले बकल कैविटी में थोड़ा सा डाइजेस्ट होके आया है खाने, फिर पार्शियली मतलब थोड़ा सा जो डाइजेस्ट हुआ है उसको फिर से डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है ये तीनों पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडिनम, जेजियनम एंड द इलियम. ओके, नाउ partially digested food called the chyme from the stomach is received by the duodenum. पहले क्या होता है, स्टोमक से कौन रिसीव करते हैं उस खाने को, पार्शियली डाइजेस्ट जो हुआ है खाने को उसको पहले रिसीव करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम. ठीक है, पहले उसको डिओडिनम रिसीव करते हैं. नेक्स्ट, duodenum also receive bile from the liver and enzyme from the pancreas. अब duodenum जो पार्ट है उसमें वो उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के साथ और दो जूसेस को मिलाते हैं. कौन से दो जूसेस, एक होता है बाइल जूसेस जो कि लिवर से निकलते हैं और दूसरा होती है एंजाइम जो कि पैनक्रियस से निकलती है. ठीक है, वो दोनों एंजाइम वापस से वो फूड में मिलता है, मतलब जो पहले से डाइजेस्ट हुआ है उसके साथ और फिर से वापस ये दो एंजाइम्स मिलते हैं. देन द वर्क ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द फूड. फिर उसको जब वो उसके साथ मिक्सड हो जाता है तो वो फिर से और उसको सॉफ्ट हो जाता है. देन जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है वो खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके, which then passes into the blood. और फिर वहाँ से ब्लड वो सारे खाने को, सारे न्यूट्रिएंट्स को उस खाने से, पेस्ट से जो जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को ज़रूरत होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नाउ भिल्ली इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अंदर है उसमें एक पार्ट है जैसे कि फिंगर की तरह रहती है, उसको कहती है भिल्ली. ठीक है, भिल्ली एक बॉडी पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है, उसका शेप पूरा फिंगर की तरह होती है. वो क्या करती है, विनी इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्बेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय द 8 टाइम्स. और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना रहते हैं उसको वो 8 टाइम तक उसको एब्जॉर्ब करते हैं धीरे धीरे से, मतलब एक साथ सारा खाना एब्जॉर्ब नहीं होता, धीरे धीरे से उसको वो एब्जॉर्ब करने लगते हैं. नाउ उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना कहाँ चले जाते हैं, देन इट इज़ गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन. फिर वो खाना वापस से उसके बस स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं. लार्ज, ओके, large intestine comprises of colon and rectum. Undigested food which is not absorbed into the blood, it goes into the large intestine. फिर जो खाना हम लोगों को डाइजेस्ट हो गया वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया थ्रू द ब्लड, थ्रू द विल्ली. फिर जो हम लोग की बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब उसको बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं. Next, water from the food is stored and reabsorbed to the great extent in the large intestine and passes it to the kidneys. तो फिर क्या होता है, वाटर फ्रॉम द फूड, फूड के अंदर जो भी वाटर रहती है वो स्टोर हो जाती है हम लोग की बॉडी में, एंड रीएब्जॉर्ब, वो उसको फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड पासेस टू द किडनीज. और वो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके किडनी में भेज देते हैं. देन अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट है, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर को जब किडनी में वो भेज देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, फिर वो खाने को क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड जो हम लोग की बॉडी के लिए एकदम ही ज़रूरी नहीं होता उसको स्टोर करके रखती है इन अ रेक्टम फॉर डिफेक्शन. देन एनस इज द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल. मतलब एलिमेंट्री कैनल जो है, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस की जो सिस्टम है उसका जो लास्ट वाला पार्ट है एलिमेंट्री एनस, तो एनस के थ्रू ये एनस होता है एकदम ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल टू द एक्सट्रेटर. दिस हेल्प्स इन द एलिमेंट्री ऑफ फेसेस बाय द प्रोसेस ऑफ एजिशन. मतलब डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट होने के बाद जो एक्स्ट्रा रह जाता है वो वेस्ट माल होती है हम लोग की बॉडी के लिए, वो वापस से थ्रू दिस एनस वो हम लोग की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं. ओके, एंड गुड हैबिट्स ऑफ हेल्दी डाइजेशन और रेगुलर ये जो प्रोसेस है ये
एक मतलब बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ये एक बहुत ही गुड हैबिट है हम लोग की बॉडी के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, ठीक है. सो नाउ द ऑल digestive system is complete. I hope all of you understand this digestive system and how the digestive system is working. All of you understand. Okay, in the next video I discuss about the habits, some good habits for good digestions and the rest part of this chapter. Okay, thank you students. I hope all of you enjoy this video. Stay healthy, stay safe. Bye bye.